اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے۔ بنے گا سارا جہان میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے۔ برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادہ خاروں کی انجمن میں، تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے، خار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا۔ ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو۔ یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ کہا جو قمری سے میں نے ایک دن یہاں کے آزاد پابگل ہیں، تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ رازدار ہوگا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ رسم بزم فنا ہے اے دل، گناہ ہے جنبش نظر بھی۔ رہے گی کیا آبرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو۔ شرف فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا، تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا۔ نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ، ابھی وہی کیفیت ہے اس کی۔ کہیں سرے رہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا۔ 17 اشعار پر مشتمل یہ ایک مسلسل غزل ہے جو اپنی حیت اور معنویت کے اعتبار سے نظم سے زیادہ قریب ہے۔ اس غزل کی نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اقبال کا فکر و فلسفہ قدرے واضح شکل میں سامنے آتا ہے۔ اس غزل میں اقبال کا انداز بھی قدرے جارحانہ ہے۔ اپنے عہد کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے یہاں انہوں نے مستقبل کی جانب بھی کچھ اشارے کیے ہیں۔ 1 سے 3 معنی: بے حجابی، چہرے سے پردہ اٹھنا، آوارہ جنوں، دیوانگی کے جوش میں آوارہ پھرنا، برہ نہ پائی، ننگے پاؤں۔ مطلب آج اس عہد میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اس کی سیاسی اور معاشرتی کیفیت کا اندازہ اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ وہ محبوب شخصیتیں جن کا بھرم ہی پردے سے قائم تھا، وہ پردہ ترک کر کے عام لوگوں میں اپنے حسن کا نظارہ کرنے پر آمادہ نظر آتی ہیں، اور آنے والا وقت اس امر کی نشاندہی کرنے کو ہے کہ بالآخر ایسا ہی ہو کر رہے گا، اور وہ راز کھل کر سامنے آ جائے گا جو شرم و حیا کے سبب ابھی تک پردے میں تھا۔
दूसरे शेर में कहा गया है कि अब वो अहद खत्म होने को है जबकि मैं नोशी बिल उमूम छुप कर होती थी। अब तो इस अमर का इम्कान नजर आ रहा है कि सारा माशरा एक शराब खाने की शक्ल इख्तियार करेगा और इसमें मौजूद हर फर्द बादे खारी का आदी हो जाएगा। वो लोग जो इश्क मस्ती के आलम में सहराओं और जंगलों की खाक छान रहे थे, अब वो फिर से बस्तियों में आ बसेंगे। हर चंद के वो सहराओं और जंगलों में बरहना पा थे, यहाँ भी उनकी सूरत हाल वही रहेगी। फर्क इस कदर है कि ये बस्तियां एक नए खार जार की मानिंद होंगी। 4 से 5 मानी, गोश मुंतजिर, इंतजार में लगे हुए कान। शेर मुराद मिल्लत इस्लामिया। मतलब इकबाल इस शेर और इसके बाद के शेर में एक नया रुख इख्तियार करते हुए कहते हैं कि आज के अलावा आइंदा के इम्कानात तो बज़ाहिर वही हैं जिनका जिक्र इब्तिदाई 3 अशआर में किया गया है। इसके बावजूद मारूजी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद करने वाले लोगों तक खाक मदीना से ये पैगाम जहां फजा पहुंचने लगा है कि हक़ ताला ने तुम लोगों की बहबूद व आसाइश और इर्तिका के लिए जो वादे किए थे, बिला शक व शुबा उनकी पजीराई की जाएगी। और वो फर्जंदान तौहीद जिन्होंने अपनी जुर्रत और आहनी अज़म के जरिए रोम के अज़ीमुश्शान सल्तनत को तहोबाला कर दिया था, फरिश्तों की जुबानी ये पैगाम दिया गया है कि वो फर्जंदान तौहीद एक बार फिर अपने मुंतशिर सफ़ों को उस्तवार करके दुश्मन का मुंह फेर देंगे। 6 मानी, मुंह फट, सच्ची बात बेबाकी से करता है। मतलब इस शेर में इकबाल कहते हैं कि मेरा रास्त गोई का चर्चा जब लोगों में हुआ तो उनके सरबरा ने कहा कि ऐसे मुंह फट लोग अक्सर खराब व खस्ता ही हुआ करते हैं, सो इस शख्स का हश्र भी कुछ इसी तरह का होगा। 7 से 8 मतलब गजल के इन दोनों अशार में इकबाल मगरबी इस्तिआरियतों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ये दुनिया रब्बे जुल जलाल ने पैदा की है, जबकि तुम इसे अपने मफादात की मंडी समझ बैठे हो। और जिस सिक्के को तुम खरा समझ रहे हो, जरा गौर से देखो कि वो तो खोटा सिक्का है। ये भी जान लो कि तुम्हारी वज़ा करदा तहजीब उन हथियारों से खुद ही अपने आप को तबाह कर लेगी जो तुमने दूसरों को बर्बाद करने के लिए इजाद किए हैं। जान लो कि जिस इमारत की बुनियाद कमजोर होगी तो वो इमारत भी यकीनन नापायदार होगी। 9 मानी, सफीनाए बरगे गुल, फूल की पत्ती को कश्ती बना ले, मोरे नातवा, कमजोर चूंटियां। मतलब इस शेर में इत्तेहादो यगानिगत का तस्वुर पेश करते हुए कहा गया है कि जिस तरह नन्ही नन्ही चूंटियां बाहमी रिफाकत के जरिए अपनी मंजिल तक जा पहुंचती हैं, इसी तरह से मुसलमान इत्तेहादो यगानिगत पैदा करके मामूली साजो सामान के साथ ताकतवर दुश्मन के खिलाफ नबर्द आजमा होने की सलाहियत रखते हैं। 10 इस शेर में चमन, लाला, कली और दिल जले वो इस्तियारे हैं जो अपनी मानवीयत के लिहाज से अलग तरतीब, वतन, खुद गर्ज किरदार, अवाम और बज़ाहिर कौम परस्ती के हवाले से देखे जा सकते हैं। मुराद यह है कि झूठे रहनुमा अवाम के खैरखा बनकर पूरी कौम को धोखा दे रहे हैं। 11 फलसफा वहदतुल वजूद के हवाले से कायनात और इसके तमाम मज़ाहिर की बुनियाद सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। इस फलसफे के हमनवा होने के नाते इकबाल कहते हैं कि अहले दुनिया ने तो खुदा के वजूद को भी कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो खुदा पर यकीन कौन करेगा। 12 तखय्युली सतह पर इस शेर में इकबाल कमरी से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि मैंने जब कमरी को इस रमज से आशना किया कि कायनात के तमाम मज़ाहिर जो आज़ाद तसव्वुर किए जाते हैं इस आज़ादी की बावस्फ मुक़य्यद हैं, तो जो अनासिर इस मुकालमे की सन गिन रहे थे बोल उठे कि ये शख्स यकीनन हमारे तमाम राज़हाए दुरूए पर्दा से आगाह मालूम होता है। 13 खुदा के हजारों ऐसे लोग आशिक हैं जो इससे लौ लगाए जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। उन्होंने बाकी दुनिया से कतई ताल्लुक कर लिया है। इकबाल के नजदीक ये तर्ज अमल न इश्क इलाही का हामिल है, न ही हकूकुल इबाद के उसूल से हम आहंग है। मैं तो खुदा तक रसाई के लिए खुदा के उस नेक और पारसा बंदे से इश्क का कायल हूं जो खुदा के बंदों से मोहब्बत करता है। 14 इस शेर में कहा गया है कि वो जिंदगी में तमाम मसाइब मुश्किलात को कोई शिकवा किए बगैर खुंदा पेशानी से कबूल कर लेता है। अगर उन पर बेचैनी और इस्तराब का मुजाहरा किया जाए तो यह हौसला मंदी और बुलंद हिम्मती की तौहीन है। 15 मानी, जुल्मत शब, रात का अंधेरा, दरमानदाए कारवां, बिछड़ा हुआ कारवां। मतलब
हरचंद कि मेरा काफिला मंजिल से भटक गया है, लेकिन मैं इस थके हुए काफिले को रास्ते की तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने हमरा लेकर मंजिल की जानिब आज़िम सफर हूँगा। तारीख शब में रोशनी के लिए मेरी आहें चिंगारियां बरसाएंगी और मेरी हर सांस शोले उगलेगी। मुराद यह है कि कौम राह से भटक चुकी है, मंजिल का कुछ अता पता नहीं। इस सूरत में इकबाल कहते हैं कि मैं अज़्म हौसले के साथ इसकी जानिब मंजिल की रहनुमाई करूंगा। 16 मानी गैर अज़ नमूद व नुमाइश के सिवा। मतलब अगर इस दुनिया में तेरी तख्लीक का मकसद जिंदगी करने और नमूद व नुमाइश के सिवा और कुछ नहीं, तो ये भी जान ले कि जिस तरह एक शोला लम्हे भर के लिए भड़कता है और फिर बुझ कर रह जाता है, इसी तरह तेरी मौत भी वाक़ई हो सकती है। मकसद ये कि दुनिया में हकीकी नमूद व नुमाइश महज खिदमत से ही हासिल होती है। 17 मानी सितम कुश इंतजार के जुल्म की सख्तियां। मतलब गजल के मक्ता में कहा गया है कि इकबाल का ठिकाना क्या पूछते हो, इसकी कैफियत पहले की मानिंद है। वो तो किसी राहगुजर पर बैठा अपने महबूब का इंतजार कर रहा होगा।